Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to continue our questions of some application of trigonometry. This chapter is very unique, very different as it is new in your syllabus. Like trigonometry, in the 8th class you have not read it, so that's why this is very important for you. And trigonometry and application of trigonometry, they both are a very good weightage chapters. So here let's continue it. Exercise 9.1, we are continuing the question. Question is the angle of elevation of a top of tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower in straight line with it are complementary. Prove the height of tower is 6. Here these sequence is little different. Why it is so? We are taking according to the levels of the questions, right? So here before this we have cleared the concept in the previous video. You please watch it to clear the concept, and some questions are also there. Let's continue it. So here we have a tower. The angle of elevation of top of tower from the 2 point it is given. एक पॉइंट जो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर के डिस्टेंस पर. सो हियर टॉप ऑफ टावर from 2 points we consider. From the base of tower they are at 4 meter and another one that is of 9 meter, right? Now they both are in straight line and angle of elevation, it is here complementary. So one line of sight, another line of sight, one is with angle theta and here another we consider 91 is theta. Why? Because they are complementary angle. Complementary when we consider the sum of 2 is equal to 90. अगर एक एंगल 30 का होगा तो दूसरा कितने का होगा 60, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए. देखो ये 30 है तो ये कितना होगा 90 माइनस 30 होगा ना, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री. तो एक एंगल थीटा तो दूसरा कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, राइट. So sum of two angle that is 90 degree. If one angle is theta, तो दूसरा कितना होगा 90 minus theta. Now here prove the height of tower is equal to 6 meter. Let's continue it. Bottom of tower, it is making an angle of 90 degree with the base. Here the height we need to prove it equals to 6 meter, right? Let's find it. Here we have AB, let it equal to h. Now to prove h equal to 6 meter, we have a base that is 4 meter. Distance of C from the base of tower that is 4 meter. Now the distance from A to D, it is given 9 meter. Here angle ACB equal to theta. ADB that is equal to 90 minus theta. Now consider triangle BAC first. पहले एक ट्रायंगल लेंगे जो 90 डिग्री के साथ होगी, और यहाँ पर याद रखना जो भी आप ट्रायंगल लेते हो वो वही ट्रायंगल लेनी है जिसके अंदर 90 डिग्री होगा, राइट. देन ओनली वी कैन फाइंड इट. अब देखो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है, बेस मुझे गिवन है तो परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC we have here theta. Opposite side it is AB, adjacent side it is AC. तो याद रखिए अपोजिट साइड क्या है, ये एंगल के सामने वाली, और एंगल के साथ में जो साइड बनती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, राइट. ये बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये बोल देते हैं बेस. बिल्कुल सेम ही है, बस एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड है और एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड है. तो रेशियो परपेंडिकुलर को अगर बेस से डिवाइड करते हैं तो वो बनता है हमारा tan थीटा, राइट. सॉरी. नाउ tan थीटा परपेंडिकुलर मतलब AB डिवाइडेड बाय बेस मतलब AC. AB it is equal to h, right. H divided by AC it is equals to 4 meter. Now here this is first equation. Consider triangle BAD now. BAD, this bigger one, BAD. Now again we have some values which is given. Angle theta that is here 90 minus theta. Adjacent side it is here AD. Now tan
90 minus theta is equal to perpendicular AB divided by AD. tan 90 minus theta की वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ पर पहले पुट करते हैं AB की वैल्यू h और AD की वैल्यू कितनी है 9, राइट. नाउ नेक्स्ट इज cot of 90 minus theta we know it equal to cot theta. Put here h by 9. Now we have two equations, right? We know cot theta is 1 by tan theta equal to h by 9. यहां से हमने फाइंड किया 1 by tan theta h by 9 है और tan theta की वैल्यू है h by 4. We can put the values here, right? We can multiply it also or you can find out the value of tan theta. हम क्या कर रहे हैं, tan theta की वैल्यू को डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे. यहाँ पर हमने tan theta की वैल्यू को फाइंड किया है, वो किसके इक्वल है, यहाँ से tan theta that is equals to यहाँ से 9 by h, right? Now next is here 9 equal to by h equal to here tan theta. अब tan theta तो हमारे पास है h by 4. So here we are putting h by 4, h into h that is h square, 9 into 4 that is 36, h square की वैल्यू 36, h की वैल्यू आ गई 6 मीटर, राइट. तो हाइट ऑफ टावर हमने प्रूव करना था, किसके इक्वल आना था, 6 मीटर के इक्वल. वो किसके इक्वल आ गया आपका 6 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So we consider a building, a boy of length of height 1.5. The angle of elevation from his eyes to the top. See this, first read this. Angle of elevation from his eyes से उसने देखा, किसको देखा, टॉप ऑफ टावर को. कितना एंगल है 30 डिग्री. और जैसे जैसे वो क्या करता है, बिल्डिंग के पास आता है, एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री. सो लेट्स सी दिस. एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. पहले हम मान लेते हैं ये क्या है 30 डिग्री. नाउ दिस बॉय मूव्स टुवर्ड द बिल्डिंग, राइट. अब ये जो पर्सन है वो चलना शुरू करता है और चलकर अब एंगल कितना बनाता है 1.5 हाइट रहेगी और 60 डिग्री एंगल बनेगा. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. आपको ये बताना है कि कितने डिस्टेंस पर ये चला होगा, राइट. नाउ लेट्स टेक दिस फिगर हियर. दिस इज सेम बिल्डिंग. The boy height 1.5. This is also 1.5. This making an angle of 30 degree. This making an angle of 60 degree. This is here perpendicular, which is with the base, right? So first of all, we consider here AB, that is 30 meter. Now this is 1.5. तो 30 में से देखो सबसे पहले ट्रायंगल्स लेनी पड़ती हैं. ट्रायंगल के लिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा. टोटल लेंथ है 30 में से 1.5 माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना आएगा, इट इज हियर BG की वैल्यू आपके पास बनेगी 30 माइनस 1.5, राइट, 28.5. आर यू गेटिंग. ये टोटल हाइट 30 थी, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा. 30 में से 1.5 को माइनस किया, कितना आ गया 28.5. नाउ हियर दिस इट इज अ रेक्टेंगल. EC किसके इक्वल हुआ FD, राइट. तो नीचे वाला पोर्शन सेम माना जाएगा, राइट. GD इक्वल होगा GF के, GF प्लस FD के. FD इक्वल होगा GD माइनस GF. देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है F से D का डिस्टेंस. तो क्यों ना पहले G से D का डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए, फिर हम फाइंड आउट करेंगे G से F का डिस्टेंस, क्योंकि हमें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. बेस फाइंड आउट करना है. तो पहले बड़ी वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो G से D है और छोटी वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो है G से F. तो GD में से अगर GF को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा FD, राइट, क्लियर. और वही वो डिस्टेंस होगा जब वो बॉय D पॉइंट से F पॉइंट तक आया. नाउ हियर GF, सबसे पहले GF ले लेते हैं. ट्रायंगल आपकी BGF के कोरस्पॉन्डिंग आती है. GF किस में आएगा, BGF ट्रायंगल में आएगा, राइट. नाउ इन दिस ट्रायंगल वी हैव हियर BFG ऑब्जर्वर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री.
अपोजिट साइड विद द बेस विच इज tan 60 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो BG डिवाइड बाय GF। tan 60 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वैल्यू होती है √3। BG की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 28.5। GF की वैल्यू आपके पास एज इट इज GF is equal to 28.5 by √3। Now next we find GF is equal to 28.5 into √3 by √3, ताकि रेशनलाइज कर सके, कभी भी रूट नीचे नहीं आता। तो 28.5 √3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड करते हैं, ये आपके पास आ गया 9.5 √3, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ GF नाउ। नाउ अंडरस्टैंड, हियर वी नीड टू फाइंड आउट GD। अब आपको G से D तक का डिस्टेंस निकालना है, तो हाउ टू फाइंड इट? GD that belongs to triangle this complete, जिसका नाम क्या है? BGD, राइट। अब इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? बेस। तो परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं, opposite side BG, adjacent side that is GD, right? Now here we can find ratio that is tan 30 degree which is equal to perpendicular by base 20, tan 30 की वैल्यू 1 by √3, BG की वैल्यू आपके पास आएगी हमारे पास 28.5, GD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ से GD आएगा आपका √28.5 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो GD into 1 GD and 28.5 into √3, 28.5 √3। Now here GF हमें पता है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, FT इक्वल टू GD माइनस GF। GD की वैल्यू हमने निकाली है 28.5 √3, GF की वैल्यू हमारे पास है 9.5 √3, माइनस करते हैं 19 √3 और ये आंसर आ गया हमारा √3 की वैल्यू 1.73 और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर बनता है 32.87 मीटर। व्हाट इज मींस? नाउ हियर FD that comes equals to EC, ये इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा 32.87 मीटर। व्हाट इज मींस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर a 1.2 meter tall girl sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2। देखो एक गर्ल है, राइट, गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2। उसने एक बैलून को देखा जो मूव करता है विंड के साथ, किसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी हाइट कितनी है? 88.2, राइट। सो 1.2 मीटर टॉल बर्ड, हियर दिस height of balloon it is 88.2, angle of elevation of the balloon from the eye of a bird is 60 degree, क्या हमें गिवन है, तो ये देख लेते हैं। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी लाइन ऑफ साइट, एंगल बनेगा 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ, जो एंगल हो गया वो रिड्यूस हो गया। सो नाउ द डिस्टेंस, कैन यू सी दिस, बैलून मुड़ा, घुमा और यहाँ से अब एंगल कितना बना? 30 डिग्री, राइट। अब हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है हमें, बैलून की हाइट हॉरिजॉन्टली मूव करता है ये, राइट, इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में ही है, तो 88.2 सेम रहेगा, राइट। नाउ हियर कंसीडर दिस फिगर। नाउ फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब देखो B से D पर पहुंचा है, तो B से D मतलब Q से R तो माना जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। हाइट ऑफ बैलून AB 88.2, नाउ दिस 1.2 माइनस करते हैं, 88.2 में से 1.2 माइनस किया, इट इज हियर, कितना आएगा? ये बनेगा आपका 87, राइट। BA माइनस के हुए विच इज इक्वल्स टू 87, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो आप समझ सकते हो, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 88.2, ये छोटा सा डिस्टेंस 1.2, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 87। ये भी डिस्टेंस सेम ही होगा, कितना होगा? 87, राइट, ताकि ट्रायंगल मिल सके। ये क्यों करते हैं हम ऐसा? ताकि प्रॉपर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की लेंथ पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बनाना चाहिए। अगर नीचे वाला लेंगे तो ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा, ये तो ट्रेपेजियम बन जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जर्व QR, सो नाउ QR इज अ पार्ट ऑफ PR। अब मुझे QR फाइंड करना है। PR में से अगर हम
पी क्यू को माइनस कर दे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू आर मिलेगा। तो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पी क्यू के करस्पॉन्डिंग, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट। ट्रायंगल के अंदर पी एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री, यहां से अपोजिट साइड, ये नीचे वाली एडजेसेंट साइड, tan ऑफ 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 की वैल्यू आएगी आपके पास √3, बी क्यू की वैल्यू 87 डिवाइड बाय पी क्यू, राइट। पी क्यू क्या आएगा 87 बाय √3, यहाँ से पी क्यू कितना होगा 87 बाय √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 87 √3 बाय 3, ये आंसर आपका बनेगा 29.3। नाउ पी आर, पी आर है कंप्लीट ट्रायंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनेगी आपकी पी आर डी, राइट। तो परपेंडिकुलर बाय बेस बिल्कुल से, tan कितना एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री, देखो ये रहा tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, tan 30 मिलेगा। tan 30 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर dr डिवाइड बाय बेस pr, तो ये बनेगा dr बाय pr, tan 30 1 बाय √3, dr की वैल्यू आपके पास है 87, pr की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो pr कम्स इक्वल टू 87 √3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड तो करना है बैलून कहां से कहां तक गया, क्यू से आर तक, मतलब ये और ये पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो पीआर में से पी क्यू को माइनस करेंगे। अब पीआर किसके इक्वल है, इट इज 87 √3, पी क्यू किसके इक्वल है, इट इज 29 √3, माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 58 √3, √3 की वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई करते हैं 100.34 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इट इज 100.34 मीटर, right students? Now here we have another question. Two buildings, they are in front of each other on either side of a road with a width 10 meter. दो बिल्डिंग है और वो रोड के दोनों एक तरफ, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, और उस रोड की विड्थ गिवन है, कितनी गिवन है 10 मीटर, राइट। नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग which is 30 meter high, angle of elevation of top of second that is 45, एक जो 30 मीटर बिल्डिंग है उससे दूसरे बिल्डिंग के टॉप पे देखा, एनसीईआरटी में फिगर बनी बनाई है यहाँ, ठीक है। इसने देखा ऑब्जर्व किया टॉप पे, तो कितना एंगल है 45 डिग्री है, राइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सेकंड बिल्डिंग, आपको बताना है कि सेकंड बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, राइट। सो हियर लेट्स टेक दिस ट्रायंगल, this is our triangle, height निकालनी है सेकंड बिल्डिंग की, राइट। so now this is AB CD, AB and CD represent the height of the two buildings, here AB equal to 30, so this 30 and distance between them that is equal to 10, so now this 30, so this also considered as 30, BD is 10, so this also equal to 10. Now A represent the position of observer, this line of sight with this CAE is the angle of elevation 45 degree. Now ABD is a rectangle, so 30 meter both, 10 meter both. अभी मैंने आपको बताया है रेक्टेंगल की हमारे हमेशा ऐसा होता है, सामने वाली जो साइड होती है means opposite sides, these are always equals, that's why we are taking it. Now we have a triangle CAE, मैंने अभी आपको बताया था कि आप ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ट्रायंगल से ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर दैट इज CE, बेस दैट इज AE, राइट, अपोजिट बाय adjacent, so here we have 10 CE divided by AE, tan 55 की वैल्यू होती है 1, 1 equal to CE by AE, right. Now this is 10, so CE की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर, got it। now टोटल आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो 10 में कितना ऐड करें 30, 10 प्लस 30 किसके इक्वल हो जाएगा 40 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड आउट करी, कितनी आ गई आपके पास 40 मीटर, got it friends। now here next question which is here very important, from the top of a lighthouse an observer look at the ship and find, सबसे पहले कहते हैं टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के ऊपर से देखा एक ऑब्जर्वर ने शिप को, राइट, ऑब्जर्वर ने
हॉरिजॉन्टल लाइन से शिप को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90, कंसिडर करते हैं लाइट हाउस की लेंथ जो है, हाइट जो है वो कितनी है 90, देन हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, आपको बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा। सो हाउ टू डू इट, if this angle EAC you are taking 60, so this downside also 60. Why it is 60? Because these both are alternate interior angles, right? Which type of angle? Alternate interior, right? So here they are equal 60 60. Now we have a triangle AB, perpendicular given, base we need to find, 60 degree angle, obvious we use the formula ratio perpendicular by base. So here we have perpendicular, point positions are given, perpendicular that is 90. Okay, first we take tan 60, right? ये हम कर चुके हैं बहुत बार, तो आप देख लेना tan 60 perpendicular AB, base है BC, tan 60 की वैल्यू क्या है √3 पुट करते हैं, AB की वैल्यू है 90, BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो BC किसके इक्वल आएगा, इट इज 90/√3, √3 नीचे है डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 90 √3/3 विच इज इक्वल टू 30 √3, BC की वैल्यू आ गई 30 √3 होता है 1.73 मल्टीप्लाई 51.9 मीटर फॉर अवे, क्या होगा वो लाइट हाउस होगा। नाउ दिस इज व्हाई आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन, ताकि आपको अगला क्वेश्चन समझ में आए जो आपके एनसीईआरटी में है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, अब आपको कहता है कि एक लाइट हाउस है जिसकी लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है 75 मीटर, राइट। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स है, एक शिप जिसका एंगल है 30 डिग्री, एक शिप जिसका एंगल कितना है 45। तो ये याद रखना, जो एंगल जो चीज पास में होती है ना उसके पास ज्यादा एंगल बनता है। तो अब ये 30 है ना, तो ये क्या, ये 45 है, तो ये 45 है, इसका मतलब ये पास में होगा, एंगल बड़ा होगा, यहाँ पर एंगल दूर होगा, तो 30 डिग्री छोटा एंगल है, छोटा एंगल है, लेकिन याद रखना यहाँ पर ये दूर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एंगल 30 है तो इसको भी 30 होना चाहिए, वाई अल्टरनेट, ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होना चाहिए 45, वाई सो because these are also alternate angles. So let's find out the distance between the two ship, right? So again here 30 degree, this again 45 degree, as these are alternate angles, right friends? Now let's take it 75 AB, height of lighthouse, AD, distance of one ship from the foot of lighthouse, then we are taking distance between the two ship, that is equals to x. Here consider triangle BAD first. अब angle given है 45, right? Perpendicular, opposite side 75, base adjacent side AD. So it is perpendicular by base, tan theta, tan 45 perpendicular AB by AD, tan 45 आएगा 1, 1 equal to AB by AD, 75 डिवाइड by AD कर देते हैं, AD की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 75 into 1, राइट, 75 भी हो गया, तो बेस आ गया 75। अब देखो दूसरी ट्रायंगल कौन सी लें, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। व्हाई नॉट दिस ट्रायंगल मैम, व्हाई, बिकॉज आई टोल्ड 90 डिग्री साथ में होना चाहिए, तो 30 डिग्री और 90 डिग्री के साथ मिलाकर क्या मिलेगा, ये कंप्लीट ट्रायंगल मिलेगी। ट्रायंगल का नाम है BAC, राइट। तो ये आपके पास आएगा ट्रायंगल BAC, एंगल ऑब्जर्व करते हैं C, ACB में अपोजिट साइड गिवन है हमारे पास AB, एडजेसेंट साइड गिवन है AC, तो ये आपका बनेगा रेशियो ऑफ अपोजिट टू द एडजेसेंट, tan 30, tan 30 बनता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan 30 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 75, AC की वैल्यू आपके पास बनेगी यहाँ पर 75 प्लस x, राइट। दोनों जो भी डिस्टेंस होंगी उनको हम ऐड कर देंगे, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x plus 75 equal to 75 √3, x equal to 75 √3 minus 75, it is 75 common, √3 minus 1, √3 की वैल्यू है 1.73, माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 75 into 0.73 which is equals to 54.75, distance between two ship that is 54.75, right।
नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर कितना गिवन है 60 डिग्री। ऑब्जर्वर से आपने ऊपर देखा केबल टावर को और ये एंगल कितना बनाता है 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब नीचे देखता है वो कितना 45, देखो नीचे देखते हैं उसी पॉइंट से, ऑब्जर्वर के उसी पॉइंट से नीचे देखा, फुट ऑफ केबल टावर कितना है 45। अभी मैंने आपको बताया था जब भी डिप्रेशन एंगल होगा तो यू कैन टेक दिस डाउन, राइट 45 बना दो। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट टावर, फर्स्ट वी टेक दिस फिगर, इसको यू क्यू देते हैं, दिस इज आवर फिगर। नाउ हियर दिस इज कंसिडर एच। अब देखो ये 7 है तो ये भी कितना होना चाहिए 7, वी कैन कंसिडर इट। हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 हमें गिवन है। Now here ABD is a triangle. By definition we can say ABED के इक्वल होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। Observe CD now. अब CD को देखते हैं। CD is made up of 2 पार्ट, एक क्या है CE, दूसरा पार्ट क्या है ED, राइट। तो यहां से CE और ED को ऐड करके CD मिलेगा, CE plus ED equal to CD। Now here CE plus 7 equal to H, फाइंड क्या करना है CE, राइट। टेक CE now H minus 7, got it friends। now take first triangle AED, इस ट्रायंगल को ले लिया। अब आपके पास देखो एंगल के सामने अपोजिट साइड, एंगल के साथ में एडजेसेंट साइड, अपोजिट बाय एडजेसेंट tan होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। tan ऑफ 45 ED डिवाइड बाय AE 1 होता है tan 45। ED की वैल्यू हमारे पास 7, AE की वैल्यू एज इट इज, AE comes equals to 7। now here in triangle AEC we have here tan of 60 degree opposite by base, tan 60 की वैल्यू आपके पास बनेगी CE डिवाइड बाय AE, tan 60 होता है हमारा √3, CE H minus 7, AE it is here 7। now cross multiply, 7 √3 equal to H minus 7, H comes equals to 7 √3 plus 7, दोनों में से 7 कॉमन लिया, कितना बच गया आपके पास √3 plus 1, √3 वैल्यू इज 1.73, पुट करते हैं +1, इट इज हियर 7 into 2.73 which is equals to 19.11। so height of cable tower we found 19.11 meter, right। now question is two pole of height 18 meter and 7 meters are erected. A wire of length 22 meter is tied to the top of a pole. Find the angle made by the wire with the horizontal. We need to find out the angle made by it. So here CE, that is perpendicular to AB, right? Now here in this we consider this AB and CD with the height of a pole, AC represent the length of a wire. Now in this we observe this is a rectangle, here the length is equal, breadth is equal। now this is 7, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, 18 माइनस 7 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ हियर AE 11। नाउ कैन यू फाइंड इट हियर, हमें फाइंड आउट करना है एंगल, एंगल कितना बना, एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब बेस तो है ही नहीं तो क्या लेके चलेंगे हाइपोटेन्यूज, राइट स्टूडेंट्स। सो हियर वी आर टेकिंग opposite side by hypotenuse, opposite side that is here 11, opposite by hypotenuse क्या होता है साइन, राइट। opposite by adjacent क्या था 10, तो 11 AE by AC, 11 divided by AC as it is, sin C 11 1/2, C की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री, राइट। एंगल C comes equal to 30, what is it। now next question is the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree. The angle of depression of reflection of a cloud in the lake is 60. Find the height of a cloud from the lake surface. देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड a point 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेक। सबसे पहले मान लेते हैं हाइट ऑफ पर्सन निग्लेक्टेड है, राइट, ये ऑब्जर्वर है। अब लेक के अंदर जो आपने कहा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, लेक से कितना ऊपर है 60 मीटर, राइट। नाउ angle of elevation that is here it's 60 degree, right। reflection of cloud depression कितना है 60, ऊपर वाला कितना है 30, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है यहां पर 60, राइट। रिफ्लेक्शन बनी हुई है उसकी। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लाउड, हमें हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी है। सो दिस इज हियर डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, राइट। यहां से जो इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी वही फाइंड आउट करनी है। तो पीसी हमें फाइंड करना है, राइट। पीसी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है, ठीक है। लेट्स फाइंड इट। व्हाट डज पॉइंट ए रिप्रेजेंट, ऑब्जर्वर। ए रिप्रेजेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम द लेक, AB that is given 60. What does P point represent, cloud। Here PAD is the angle of elevation, Q represent the reflection of cloud, here 60 degree that represent the angle of depression, ABCD is a rectangle, so if this is 60 this also considered as 60। now here observe PC, P को C से measure करो, PC is made up of PD plus CD, right। now in this PD plus CD that is equal to PC, PD में 60 ऐड करते हैं, कितना आएगा x, PD आएगा x minus 60, राइट। कंसिडर ट्रायंगल ADP, ये आ गया। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करना है, बेस से, राइट। तो ये आएगा आपका अपोजिट साइड x minus 60, एडजेसेंट साइड दैट इज AD, x minus 60 डिवाइड बाय कितना AD। tan 30 की वैल्यू बनेगी 1/√3, PD की वैल्यू है x minus 60, AD की वैल्यू as it is। Now we can find AD here x minus 60 by into √3, right। Now consider AQD triangle now। AQD triangle में we have a base, we need to find out a perpendicular now। Now this is here x plus 60, why it is so, यहां से यहां तक का 60 है, यहां से यहां तक का x है, ठीक है। तो tan 60 का फॉर्मूला बनाते हैं। tan 60 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, perpendicular DQ base AD, tan 60 it is √3, right। DQ it is x plus 60, AD it is √3 into x minus 60। now cross multiply 3 into x minus 60 कितना होगा x plus 60, multiply 3x minus 180 equal to x plus 60, 3x minus x equal to 60 plus 180, 2x comes equal to 240, x equal to 120 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लाउड हमने फाइंड आउट किया 120। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर, राइट। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार at angle of depression 30 degree which is approaching the foot of tower 6 seconds later। Here the angle of depression is found to be 60 degree, find the time taken by car to reach the tower from the point। so here we need to find out the time। so this as it is figure we will take here, we know these 30 degree, this one is 30, so this also 30, this making an angle of 60 degree, so this also making an angle of 60 degree, why alternate angle, right। now time we know, distance by speed, let's find out। here AB, let's consider the height of a tower। now this is AC,
Let's consider the foot of tower to the car C, let equal to y. CD we consider, that is distance covered by the car in 6 seconds, that is x meter. Now here we are taking a triangle BAC. Observe angle C 60 degree. एंगल के सामने अपोजिट साइड AB, एंगल के साथ में एडजेसेंट साइड क्या है AC. परपेंडिकुलर बाय बेस, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, tan 60 perpendicular by base AB by AC. It is here √3. AB की वैल्यू हमें पता है h, AC हमें पता है कितना है y. तो h की वैल्यू क्या बनेगी √3 by. Now consider triangle ABD here. This is complete triangle ABD. Observe angle D. BDA equal to opposite side divided by here adjacent side, that is AD. Then tan 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस. tan 30 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/√3. AB आपके पास है h, बेस आपके पास है x plus y, right? Now here let's find x plus y, which is h into √3. h की वैल्यू हमें पता है √3y, तो √3y into √3 from equation first we have used. x plus y equal to √3, 3y हो जाएगा. x equal to 2y हो जाएगा, क्योंकि 3y y इधर लेके जाएंगे, 3y minus y कितना होगा 2y. Now distance covered by car in 6 second, that is x. Speed of car, that is equals to distance divided by time. तो distance किसके इक्वल होगा x, टाइम किसके इक्वल गिवन है 6, तो यहां से स्पीड किसके इक्वल आएगी, इट इज इक्वल्स टू x. x इक्वल टू 2y पुट कर देते हैं, 2y by 6 किसके इक्वल होगा यहाँ पर 3. तो स्पीड ऑफ कार कितनी है y, और यहां से टाइम कितना आया है 3. तो यहां से टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट C, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, विच इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू 3. y by 3 किया तो आपके पास आएगा 3y से y कैंसिल, कितना आ गया 3 seconds, right? So this is the answer. So by this we have completed our exercise. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates of upcoming videos. Thank you. Bye bye.